تو تکلیف تو ہوگی. اور جب اپنی کرسی کو خطرہ نظر آ رہا ہے, آپ نے پہلے سب کو جو بولتا تھا اس کو جیل میں ڈال دیا, جھوٹے مقدمات بنا دیے, کسی کو منشیات میں اندر کر دیا, کسی کو کسی بات پہ اندر کر دیا, وہ بعد میں مقدمات چلے بھی نہیں, آپ کے منہ کی کھانی پڑی آپ کو. تو جب آپ نے اس طرح کے سارے ہتھ کنڈے ہتھیار استعمال کر لیے, ریاست کی پوری طاقت آپ نے نواز شریف کو اور اس کی جماعت کو کچلنے میں لگا دی, تو آپ کو جب ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے, یہ چیزیں بھی ایک حد تک چلتی ہیں, اس کے بعد نہیں چلتی. تو جب وہ چیزیں اب نہیں چل رہی تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ سب خاموشی اختیار کرے رکھیں گے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا بھی جس طرح پہلے خوف کی زنجیروں میں جکڑا رہا ہے, میں اس میں اتنا قصور میڈیا کا نہیں کہتی, لیکن اب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ سب یہ زنجیریں توڑ رہے ہیں, اور خوف ہی خوف کو ختم کرتا ہے, تو یہ خوف اب ختم ہو چکا ہے. دیکھو میں سب کی بات کا جواب دوں گی, آپ فکر نہ کریں. جب سے آپ کے جلسوں کا شیڈول آیا اور یہ ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پھر سرگرم ہو رہی ہے اور سیاست میں آ رہی ہے, کھل کے کھیلے گی اب, تو پھر سے آپ کی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہے, رات کو بھی یہ اطلاع تھی, آج صبح بھی یہ اطلاع تھی, تو کیا آپ ذہنی طور پر تیار ہیں ان سب ظاہر سچ بولنے میں تکالیف آتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ نہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جب آپ نے یہ راستہ اپنے لیے چنا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ یہ مشکلات آئیں گی. یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. چپ کر کے پیچھے سے سازشیں کر کے اور اقتدار کے اوپر براجمان ہو جانا یہ آسان کام ہے. حق کے راستے پہ کھڑا ہونا, لڑنا, وہ یو نو دیٹ اٹ ہیز اے پرائز. تو وہ پرائز میں نے پے کی بھی ہے. میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کیا, پہلی دفعہ میری والدہ جب بیمار تھی میں آئی, مجھے گرفتار کیا. مجھے اس کا کوئی خوف جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, مجھے ویسے پہلے دفعہ بھی نہیں تھا. اب کریں گے تو میری یہ ایک گزارش ہے اور وہ یہ سن لیں کہ اب آپ اگر یہ کریں گے تو میں تو گرفتار ہو جاؤں گی, دیکھیں نا, گرفتار کریں گے تو گرفتار ہو جاؤں گی, لیکن سیاہی تو آپ کے اپنے چہرے پہ ملی جائے گی. اور جب لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے مریم نواز کو کیوں گرفتار کیا, اس کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو پھر یہی بات سامنے آئے گی نا کہ آپ کو مریم نواز سے اور اے پی سی کے ایجنڈے سے, اس کی تکمیل سے, اس کی کامیابی سے, مسلم لیگ نون سے, آپ کو نواز شریف سے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ آپ مریم نواز کو گرفتار کر کے وہ سارا الزام اپنے اوپر لے رہے ہو, اپنا خوف بھی دکھا رہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے, اور میں گرفتار ہوتی ہوں, ہو جاؤں, میرے علاوہ بھی 10 لوگ اور گرفتار ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس کارکنوں کی اور جان بازوں کی کمی نہیں ہے. مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاہد خاقان عباسی آ جائے گا, شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوگا تو رانا ثناء اللہ آ جائے گا, رانا ثناء اللہ گرفتار ہوگا تو پرویز رشید ہوگا, مریم اورنگزیب ہوگی, سعد رفیق ہوگا, احسن اقبال ہوگا, سب ہوں گے. مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو آپ گرفتار کرتے کرتے تھک جائیں گے, ان کے کارکن ختم نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ہم نے عوام کی, ملک کی, آئین کی, قانون کے تحفظ کی قسم کھائی اور ہم اس ایجنڈے پہ میں نے کہا مجھے آپ نے گرفتار ہونے والوں میں نام بھی نہیں لکھا, اس لیے کہ آپ, میں نہیں چاہتی آپ گرفتار ہو اس وقت. 2 دن کا نہیں, مجھے کر بھی نہیں سکتے. ایک طرف 2 دن میاں صاحب کا جو ہے خطاب ہوا ہے, اس کے بعد آپ کو ورکرز کی موٹیویشن لیول کو کس مقام پر دیکھتی ہیں, کیا ریسپونس آپ کو دیکھ رہے ہیں ملک بھر؟ میں تو پچھلے 2 سال سے 3 سال سے, بلکہ جب سے میاں صاحب کی حکومت بھی تھی اور میاں صاحب کی حکومت پہ یہ مشکلات بھی آئیں, اس کے بعد سے جو ہمارا سفر ہے, مشکلات کا سفر ہے, میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں یا پاکستان کے 72 سالوں میں ایک چیز دیکھی ہے کہ مشکلات کے سفر کے, جب مشکلات آتی ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یا کسی لیڈر کے اوپر, تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہسٹوریکلی یہی رہا ہے کہ پنجاب کو لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. پنجاب نے اپنے سارے داغ دھو دیے, اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے ورکر نے, مسلم لیگ نون کے سپورٹر نے, مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جس طرح سے میاں صاحب کے بیانیے کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے لیے مشکلات صحیح. آپ نے دیکھا کہ اب پچھلے دنوں وہ نیب میں جب پتھراؤ ہوا اور سب کچھ ہوا اور مقدمات بنے, کس طرح سے لیڈرز نہیں جیل گئے, کارکنان جیل گئے, اور کارکنان نہ صرف جیل گئے بلکہ جیل میں انہوں نے اتنی بدترین مشکلات کا سامنا کیا, اور باہر نکل کے انہوں نے پھر وہی بات دہرائی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے آپ مسلم لیگ نون کو جھکا لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے, اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے. میاں صاحب کے چاہنے والے بڑے ہیں, اور جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ نہیں بھی الائنڈ تھے اور سمجھتے تھے کہ اس ملک میں قانون, آئین اور انصاف پہ چلنے والا ملک ہونا چاہیے, آج وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
आप इस हुकूमत को किस तरीके से हटाएंगी? जलसे जुलूस, राब्ता अवाम मुहिम, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये तो हो जाएगी, लेकिन आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि ये हुकूमत हट जाए, उसके बाद एक नई इलेक्शन हो? इस हुकूमत की बुनियाद ही इतनी कमज़ोर है कि इस हुकूमत को एक झटका लगा तो ये हुकूमत एक झटके का सह नहीं सकेगी। जिसकी बुनियाद ही साजिशों पे रखी गई हो, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, और आपस में 2-3 लोगों ने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किया हो, तो उस हुकूमत को हिलाना गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अपनी साजिशों की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से वक्त से बहुत पहले गिर जाएगी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और दूसरी जानब हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ भी मफरूर है, उस हवाले से ना तो हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा काम किया नजर आता है, ना ही कोर्ट की तरफ से। तो आप नहीं समझती कि आपको तो हुकूमत की जानिब से काम और कोर्टों की जानिब से ज्यादा स्क्रूप टैग किया जा रहा है? इसके पीछे वही चेहरे हैं, चाहे वो कोई भी इदारा इस्तेमाल हो रहा हो, चेहरे वही हैं पीछे। और मैं तो इसलिए पहले भी कहती हूँ कि इतना ये कमज़ोर, बुज़दिल और क्या कहना चाहिए ऐसा आदमी इमरान खान के, जब इससे ख़ुद चीज़ें हैंडल नहीं होती क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से ज़रा खाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। तो ये वो वक्त अब आ गया। जिस तरह सियासी माहौल गर्म हो गया है और जो हालात इस पे चल रहे हैं, आपने समझ ली कि अब डायलॉग वाली बात खत्म हो गई है? क्योंकि हमेशा माजी में भी देखने में आता रहा कि सियासतदान डायलॉग के ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये तसादुम की तरफ नहीं बढ़ेंगे आगे? देखें, डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो, कोई कानून हो, इंसाफ हो। मैं ऐसे इंसान से या ऐसी हुकूमत से या जो उस हुकूमत के पीछे खड़े हैं जो कि ना आइन में बिलीव करते हैं ना कानून में बिलीव करते हैं, लोगों की वोट की ताकत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं, वोट लोगों ने किसी को डाला, डब्बे में से निकला किसी और के नाम और फिर RTS डाउन करके जो कर दिया, ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, ऐसी हुकूमत को तो मैं आपने मेरे मुँह से आज तक नहीं सुना होगा वज़ीर आज़म। मैं उसको ना वज़ीर आज़म मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था, इसको एक्सपोज करना चाहिए था। हाउएवर देर आए दुरुस्त आए। अच्छा मैडम ये बताएं कि ये जो हुकूमत आपके खिलाफ अब निकल आएंगे मैदान के अंदर, आप समझती हैं कि हुकूमत अब घर चली जाएगी? आप नून लीग में इतनी पावर है कि हुकूमत को जो है वो पछाड़ देगी? नून लीग में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पावर है, तभी तो आप देख रहे हैं ना कि जब मियाँ साहब एक तकरीर करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन 10 लोग आके जो है वो उनकी तकरीर का असर ज़ाहिर करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, वो लॉन्च कर दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ और लोगों को बिठा दिया जाता है जिसको कहा ये एजेंडा मिला होता है कि मियाँ साहब की तकरीर को गलत अंदाज से पेश करो, ये करो, वो करो। तो ये तो उसी से ज़ाहिर है। अभी जवाब जी आसिफ ने बयान दिया है, आसिफ जरदारी के हवाले से जो आप लॉन्ग प्ले करना जा रही हैं, उसके अंदर अगर इस तरह के बयान आते रहेंगे तो ख्वाजा आसिफ ने क्लियर बात की है कि आसिफ जरदारी पे यकीन नहीं कर सकते। आप कर रही हैं और क्या ख्वाजा आसिफ को शोकाज किया है आप लोगों ने? उनसे ज़्यादा जो क्लियरर बात है वो मियाँ साहब ने आज खुद कर दी, अपनी स्पीच पे लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी है। और मियाँ साहब ये समझते हैं कि हम सब जमातों को इकट्ठा होकर चलना है, और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो हम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या वो ANP हो, या वो कोई भी जमात हो, छोटी जमातें भी, हम सबको इकट्ठा चलना है। हम सब की यूनिटी होनी चाहिए और उसको इंश्योर मियाँ साहब ने खुद किया। थैंक यू। आप फैसला कुन राउंड खेलने जा रही हैं, तो आपके ज़हन में क्या है कि ये हुकूमत कितने अरसे में गिर जाएगी, या इस हुकूमत के पास कितना एक टाइम आप समझती हैं अब रह गया है?
जिस तरह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो शायद जो APC ने पूरा अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है और जो टाइम टेबल दिया हुआ है ये तो उससे भी पहले इंशाल्लाह लुढ़क जाएगी। मरीम, ये बताइएगा, आप इन दो बड़ी शख्सियात के बीच में बैठ के हमसे बात कर रही हैं, रशीद साहब हैं, जावेद हाशमी साहब हैं, कि बहुत बड़ी मुश्किल है। जावेद हाशमी साहब के हवाले से गद्दारी के इल्ज़ाम भी लगे, मुकदमा भी कायम हुए। आजकल जिस पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है उससे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है। और आजकल जिस पे मुहिब्बे वतनी का हुब्बुल वतनी का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है ना उसके ऊपर उसको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। मियां साहब के लबो लहजे को लेकर आजकल तशवीह दी जा रही है अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से कि आजकल वो भी लंदन से खिताब कर रहे हैं, माजी में अल्ताफ हुसैन भी लंदन से खिताब किया करते थे, तो आप ये समझती हैं कि ये तशबीह भी दुरुस्त है? और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब बंद गली में चले जाते हैं। मियां साहब का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मियां साहब को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते और ये जो हुक्मरान आप जाली बैठे हुए हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियां साहब माशाल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियां साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है। मियां साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियां साहब जो बात करते हैं उसमें वज़न है। मियां साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें, मियां साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियां साहब ने जो बातें की हैं उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात अवाम सुनना चाहती है। और आप उसको मियां साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियां साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला 4थी दफ़ा भी बनेगा। तो मियां साहब की अपनी जगह है, मियां साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है, क्या आप धरना देने इस्लामाबाद भी जाएंगे या सिर्फ जलसे ही होंगे? जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा। तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम। मैडम ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था जरदारी इमरान भाई भाई, आज जरदारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ जरूर है, दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के मिसाइली प्रोग्राम के ऊपर इंकशाफात की है, इससे आपको नहीं लगता कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क की सलामती के मसले के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें? जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कल उन्होंने बात की है, नवाज शरीफ ने क्या बात की है? उसमें काबिल एतराज क्या है? जो मिसाइल प्रोग्राम को इंकशाफ कर रहे हैं, जो ये क्या इंकशाफ बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा इंशाअल्लाह। चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। ये बताइएगा कि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिटिकल जद्दोजहद हो, यकीनन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग ने या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रूल के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे और दैट्स इट। मैम, अवाम राब्ता मुहिम आप चलाने जा रही हैं, सोमवार को आप दूसरा वाला जा रहे हैं अवाम राब्ता मुहिम चलाने से। हाँ जी। क्या फ्री अरेस्ट बेल चलाने का कोई आपका है ताकि आपकी जो अवाम राब्ता मुहिम है वो अफेक्ट ना हो जाए? एक सेकेंड फ्री, अभी तो मेरे पे
कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिस पे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेज़र गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊंगा। थैंक यू। मरियम नवाज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सवालात के जवाब दे रही थी। उनका कहना था कि बेल बिफोर अरेस्ट नहीं